Bismillahirrahmanirrahim. Respected audience, honorable guests, and beloved students, Assalamu alaikum. This is Nausheen Abbas Naqvi, your host, Bismillahirrahmanirrahim. Faculty Management Respected of Casper. audience. First of all, I would like to thank Casper Management and the CFO Club who has arranged a wonderful series of webinar. And once again, we have come with a very interesting, informative, and valuable topic, especially for those students who want to make career in the field of finance and accounting. Uh, Today, our topic is transformation in finance and accounting profession. As you know that technology transformation is expected to be enhanced day by day, especially after the COVID-19. और during this period हम सब ने ये देखा कि mostly more than 90% businesses अपनी जितनी भी business activities थी, चाहे वो marketing से related हों, finance से related हों, या एचआर की या कोई भी ऐसी, जैसे हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमने सारा जितना सेटअप था वो ट्रांसफॉर्म कर दिया, जितनी भी हमारी जो टीचिंग सर्विसेज थी या रजिस्ट्रेशन सर्विसेज थी, एडमिशन सर्विसेज, वो सब की सब कन्वर्ट हो गई उसके ऊपर. सो द पर्पस ऑफ दिस वेबिनार इज टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन. ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से फाइनेंस या अकाउंटिंग में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई. ऑब्वियसली कई सालों से ये ट्रांसफॉर्मेशन आती रही है और बहुत से ऐसे स्पेशली प्रोफेशन हैं या ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से बेनिफिट उठाया जा रहा है. आज इंशाल्लाह हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली इससे जुड़े जो लोग हैं इस वक्त करंटली अपनी वो स्किल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, इसके लिए वो हम अपने पैनल से इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे. Now I would like to introduce our panelists and the respected moderator. Our first panelist is Mr. Daud Khan. He is a chartered accountant registered with ICAP. He is the managing partner of Daud Saif and Chartered Accountants and previously worked in the Arabian Gulf region for more than 7 years and has held managerial position with the Deloitte and Touch. He has also worked with the Deloitte and Touch Pakistan office for more than 7 years and was the part of Deloitte Train the Trainer program. His experience of more than 16 years span around assurance, financial advisory and consultancy, and his clients included manufacturing, distribution and trading organization, premier banking, and financial institutions. In addition, he is also the CEO of the newly established company, BizTech Consulting Private Limited. Thank you so much, sir, for joining us. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Thank you so much. Our second panelist, Mr. Khurram Jamil. He is a fellow member of ICAP and certified member of the Institute of Internal Auditors. He has recently joined Grant Thornton and is currently working as a partner in the business assurance services. He has also served as an assurance partner in Ernst & Young for 7 years. Mr. Khurram has been an active member of accounting and auditing committee of ICAP and has made various technical presentations for the ICAP, SSCP, and State Bank of Pakistan. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, Nausheen, for having me. Thank you, sir. And our moderator, very renowned personality, Mr. Shehzad Dedi. Thank you so much, sir, for joining us. The founder of the CFO Club Pakistan and the UK and the CFO Army Welfare Trust Investment. Thank you once again for your coordination, for your support, for making this webinar with the students. Before moving the Mr. Shehzad, I would like to brief you the pattern of webinar. सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट के साथ डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह उसको मॉडरेट करेंगे शहजाद साहब. और हमारे पैनलिस्ट आपको अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से इस टॉपिक के बारे में ब्रीफ करेंगे और जैसे कि अभी पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशली न्यू आने वालों के लिए और जो इसमें रिसेंटली वर्क कर रहे हैं
वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, और कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड हैं जो इस वक्त ग्लोबली और स्पेशली पाकिस्तान में यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो जूम पे ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड है, दे कैन राइट देयर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स एट द एंड ऑफ द सेशन। और जो फेसबुक पे हमारी ऑडियंस हैं, दे कैन आल्सो आस्क देयर प्रोफेशनल क्वेश्चंस एज वेल। सो अब मैं आप लोगों के दरमियान ज़्यादा देर टाइम नहीं लूँगी, और हमारे जाहिर सी बात है बहुत प्रेशियस टाइम हमारे जो है मेंबर्स ने, पैनलिस्ट ने वक्त निकाला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहजाद साहब का और हमारे पैनलिस्ट का कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। यस, ओवर टू यू शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। Thank you. First of all, thank you very much, Nosheen, for kind introduction, and thank you, Caspi team. I would also like to thank the guest panelist, Mr. Khurram Jamil, as well as Daud Khan. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टॉपिक है क्या, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। बचपन से हम एक चीज सुनते आए थे, दैट वाज चेंज मैनेजमेंट। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्या चेंज मैनेजमेंट ही ट्रांसफॉर्मेशन है, या ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मैनेजमेंट से एक स्टेप आगे है। बचपन से हम पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में थे, फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड, थर्ड, नाउ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री 4.0, दैट इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये सारी टर्म्स हमें सुनने को मिलती है, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। इसके साथ साथ अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखते हैं तो वो बताते हैं कि जो फ्यूचर है उसमें से बहुत सारी जॉब जो है वो जो बुक कीपिंग टाइप की हैं, जो डेटा एंट्री की जॉब्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी। एट द सेम टाइम बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, लेकिन वो जो लिस्ट है उससे हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव जॉब्स हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माय पैनलिस्ट, लेट मी स्टार्ट विद मिस्टर खुर्रम जमील, हाउ डू यू सेपरेट द चेंज मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फाइनेंस में स्पेशली आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पे इस वक्त हैं एंड कहाँ हम फ्यूचर देख रहे हैं, स्पेशली इन द पाकिस्तानी इन्वायरमेंट। क्या फर्म्स ने ट्रांसफॉर्मेशन पे अभी काम किया है? क्या CFOs में आपको लगता है कि वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन? क्या एजुकेशन में, करिकुलम में आपको चेंजेस नजर आ रही हैं? एंड व्हाट्स द फ्यूचर? सो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग से। जी खुर्रम साहब, आप हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। Just Khurram sir, you are on mute. no. Can you hear me now? Ji, we can hear you. Just give me 2 minutes. I will set my presentation. Just. Achha, I can. You go. Okay, you will run the presentation. Yeah, okay. Yeah, Shahzad, can you see the presentation now? Ji, I can see. Can you see the presentation? Yeah, I can see. So this is the last slide. We have to start from the first page. This is the, yeah, okay, yeah, right. Okay, so thank you, Shahzad, and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone, and thank you for joining us for this webinar. So, being an assurance partner, so let me just take you first to the auditors and accountants perspective of the transformation in finance. So normally, what we do is when we go any accounting firm when they are going for the audit. So normally we focus on the financial reporting framework. Plus, the management is also interested in preparing the financial statement as per the accounting standards. So, although the Bible for the financial reporting framework is still the IFRS, but now these days, as Shahzad also mentioned and Nosheen also touched upon, that now we have to opt for different techniques other than the accounting standard also. And those techniques could be sampling techniques, analytical procedures, and there could be more techniques other than only
just compliance for the financial reporting standards. Similarly, when we come to the legislative compliances and regulatory requirements, so I think the tendency in this part of the world is like we normally we behave on our behavior is like on a reactive nature rather than proactive. Meaning, when there is a non-compliance, when we find any non-compliance, we tend to just go and solve the problem. And I think the ideal situation should be that we have to be preemptive, and why and we have to be preemptive, and there has to be a system where we can just identify the non-compliances before happening. Okay, so I cannot see the presentation, Shazad. There's some problem, I cannot see. Yeah, okay, thank you. So, okay, and now I think we all would agree that all the above activities are mainly the responsibility of a CFO of every entity now, and we will discuss in this session that how the CFO should also be prepared for these changes. Can we go to the next slide? Okay, now I think you also touched upon that the finance transformation. What is the difference between finance transformation and change management? I think in a single line, I would say that the finance transformation is the change of the traditional mindset. Now, I think the best example could be that in our environment, like if we go 10 years back, so the finance function is mainly relating to the bookkeeping of any entity. Now the times have passed. Now we have to come up with, I think, with creative ideas that how the finance function should be more beneficial for the entity's operations. Similarly, change management is like the identification of the problems, determine their causes, and plan solution. Now, I think it's a very pertinent example in our environment is like the newly formed regulations, anti-money laundering. So I think we all are familiar that the regulator is also very active in this. So now we will have the management and especially the finance department will have to be proactive that not only for the identification of the problems, if there is they have discovered any issue. So what are the causes and what should be the solution? And more importantly, that there has to be internal controls that these things should not even happen in the future. Okay, so next slide, please. Can we go to the next slide? Yeah, okay, so now, so I think how we can implement these techniques or these methods in our day-to-day operations. So I think the first and most important, I would say that instead of a cost center, the finance department should be acting as a business partner of any entity. So meaning, so now there are multiple ways for achieving this. For instance, the implementation and selection of accounting policies. Now we understand that these days the selection of accounting policies can definitely affect the business operations plus the financial reporting. So in this case, now the previous mindset was that the finance function will come after the transaction has occurred. But I think one of the most important aspect we can take this from the transformation, that finance is not only the post-transaction work, is rather this is the more focus should be given on the pre-transaction nomenclature. And the second point I would say, like this in Pakistan, I would say the most we need the most improvement in this area is like that I think definitely we lack in using business intelligence tools and data analytics. Now, if we compare Pakistan with other countries and other industries, so I think we all would agree that we are far behind in this aspect. And this I would say that we should be focusing probably 90% of our activities on achieving this, because now physical work, the personal work is gone. So we have to be selective for computer assisted techniques, intelligent tools,
and so on and so forth. I think so. I would conclude my presentation with a small video, which is self-explanatory. This video will give you, like I would say, just how the world is reacting on the finance transformation. So okay, I think now we can open the discussion. So back to you, Shazad. जी, thank you very much. Nice presentation for them. I would like to know कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं और पहले जब हम बात करते थे चेंज मैनेजमेंट की, दाऊद मेरा आपसे सवाल है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज मैनेजमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन? जी अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी डिटेल टॉपिक है दोनों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ इज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। एंड चेंज मैनेजमेंट में, जैसे भी खुरम ने अपनी स्लाइड में भी लिखा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर मैं फाइनेंस स्ट्रिक्टली फाइनेंस की बात करें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो खैर इस वक्त हर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, हर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस तक रिस्ट्रिक्ट करूँ इस वक्त, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस को वेरी रिसेंट पास्ट एक बैक ऑफिस फंक्शन कंसिडर किया जाता है, ठीक है, एंड दिस इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंस, ठीक है। अब बैक ऑफिस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। नाउ वाई ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एरियाज में है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। उससे हम 10 साल पीछे अगर चले जाएं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अगर हम देखें, हम फाइनेंस को विजिट करते थे तो वहाँ बीइंग एन ऑडिटर एंड ऑल दैट, फाइनेंस में कोई 50-100 बंदे बैठा हुआ करते थे। आज 10 साल बाद वहाँ शायद उसी ऑफिस में 10-15 लोग बैठे होंगे, ठीक है। दैट्स वेयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज कम इन, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टॉपिक, आई बिलीव कि उसके अंदर, उसी के अम्ब्रेला के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कवर होती है, ठीक है, बट इट्स मोर स्पेसिफिक, जैसे खुरम ने कहा कि इट्स मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल दैट। तो फाइनेंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ी सी रैपिड पेस से हुई है पिछले कुछ सालों में, एज आई सेड के क्योंकि बैक ऑफिस फंक्शन है उसको, अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रैपिड पेस के साथ ये चेंज एक्सेप्ट किया, उन्होंने इसको 2 एरिया में बाइफिकेट किया, ऑपरेशनल एंड और स्ट्रेटेजिक एंड। ऑपरेशनल एंड में तो बड़ी जल्दी से चीज़ें चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर दिया। स्ट्रेटेजिक एंड अगेन इसमें शायद अभी भी टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट स्टिल रहेगा। जो आपने इनिशियली एक डिस्कशन की कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने कुछ जॉब्स आइडेंटिफाई किए कि ये डिप्लीट हो जाएंगे, डेप्रिशिएट हो जाएंगे, या ऑल्ट शायद ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। वो अकाउंटेंट की बुक कीपिंग एंड ऑल दैट, वो सारी ऑपरेशनल लेवल की जॉब्स हैं।
फाइनेंस में ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा ह्यूमन कैपिटल वहाँ पर एम्प्लॉयड है। अब मैं रिसेंटली पढ़ा था कोई अराउंड 85 मिलियन की जॉब्स वहाँ पर इंटैक्ट है। बट ये जो रिप्लेस हो रही है जिन जॉब से, वहाँ कह रहे हैं कि अराउंड 97 मिलियन जॉब्स फर्दर क्रिएट हो रही है। तो देयर इज अ बैड न्यूज ऑब्वियसली कि सर्टेन जॉब्स डिप्लीट होने वाले, बट ऑन द अदर हैंड स्पेशलाइज स्किल्स की जॉब्स फाइनेंस में वापस से आ रही है, ठीक है, जो कि अराउंड 97 मिलियन फिगर सुनने में आ रहा है कि वो इतने एम्प्लॉय करेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ मतलब फाइनेंस के लोग थोड़ा सा इसको नेगेटिवली ले रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इसकी पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। चेंज मैनेजमेंट एज आई सेड, उसके अम्ब्रेला में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दाऊद, फ्यूचर आप क्या देखते हैं? एक जो बंदा जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में है, वो क्या वो कंप्लायंसेस ही कर रहा होगा डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए, या वो इनोवेटिव आइडियाज लाएगा और बिजनेस को सपोर्ट करेगा? देखिए, जो आपकी स्पेशलाइज स्किल्स हैं, IFRS की, रिपोर्टिंग की, रेगुलेटरी, कंप्लाइंस, वो तो अपनी जगह करेंगे। वो स्किल्स शायद आगे 15, 20, 25 सालों में भी उसको ह्यूमन एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन उसके अलावा की जितनी भी आपने अभी जो बात की, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवन कस्टमर कम्युनिकेशन, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अब आपकी स्किल सेट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, ठीक है। अब अगर मैं डेटा की बात करूँ तो मतलब मेरी जितनी भी स्किल्स है वो डेटा के अराउंड होगी, ठीक है। पहले स्किल्स मेरी होती थी इंफॉर्मेशन के अराउंड, यानी जो मेरी, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे बुक कीपिंग, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर लेगा, आपके ERP मैनेज कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास वो डेटा मैनेज हो क्या आता है, ठीक है, उसके ऊपर जो एनालिटिकल स्किल्स यूज होनी है, उसको डेटा विजुअलाइजेशन होनी है, वो स्किल्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जितने भी AI की टूल्स अभी आ रही है इस वक्त, AI जब बच्चे सुन भी रहे होंगे, AI में जस्ट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, उसमें डीप लर्निंग भी है, मशीन लर्निंग भी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे उसके अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंस रिलेटेड जितने भी टूल्स आ रहे हैं वो बेसिकली NLP रिलेटेड टूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग काफ़ी यूज हो रही है। तो आपको उसके गिर्द के जो टूल्स है, उसके गिर्द जो स्किल्स है, उसके ऊपर काम करना होगा। एज आई सेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, दिस इज वेयर फाइनेंस का जो बंदा है, अभी रिसेंटली अगर आप देख रहे होंगे बड़ी इंडस्ट्रीज में दे आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस पार्टनर, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर, दे आर नॉट सेइंग कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एंड ऑल दैट। द थिंग इज, अब फाइनेंस को अपने आप को रिपोजिशन करना होगा, हाउ दे विल ड्राइव वैल्यू इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो नहीं हो सकता कि आप बैक एंड पे बैठे हुए डेटा दे रहे हैं। वो डेटा तो आप कोई भी सेल्स का बंदा भी रीड कर सकते हैं, वो बंदा एक्सेस कर सकते हैं, मार्केटिंग का बंदा भी एक्सेस कर सकते हैं, परचेज का बंदा भी आपका रोल अब वहाँ बढ़ जाएगा कि उस डेटा को विजुअलाइज आप कैसे करें, उस डेटा को एनालाइज कैसे करें, उसकी इंपॉर्टेंस आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए, दूसरे फंक्शंस के लिए कैसे रियलाइज करवा रहे हैं। दैट्स वेयर द स्किल्स विल बी, दैट्स वेयर आई बिलीव कि जितनी भी आपकी स्किल सेट है, अपार्ट फ्रॉम टूल्स एंड ऑल दैट जो आपको सीखने हैं, जितने भी नए बच्चे हैं जो देख भी रहे हैं, या इवन जो भी लोग अभी नए नए इंडस्ट्री में आए, आपकी प्रॉब्लम थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है वो आप डिटरमाइन करेंगे आपके करियर को, और यही चीज़ डिटरमाइन करके ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस को इट्सेल्फ। जिन कंपनीज ने ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ पे काम किया, दैट वाज ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल। उन्होंने पहली चीज़ उस पर काम किया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द स्किल्स, जो कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा विजुअलाइजेशन की स्किल्स, एनालिटिक्स की स्किल्स, ये आपका करियर डिफाइन करेगी, यही ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेगी। जी, खुर्रम से मेरा सवाल है, खुर्रम, व्हाट स्टेप्स वुड यू रेकमेंड अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हैं? एक तो मुझे आपसे समझना है कि स्टेप्स क्या होंगे या रोड मैप क्या होगा, एंड हु विल लीड इट? क्या ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर लीड करेगा, जो फाइनेंस में CFO है वो लीड करेगा, या जो फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वो लीड करते हैं? हु इज गोइंग टू लीड इट एंड व्हाट वुड बी द road map for transformation? Okay. Before answering your question, I would just like to add one or two comments. Okay, if I can give you the example for audit profession, because audit profession भी बिल्कुल link होता है accounting profession से. अगर if we go back to 90s or even early 2000s, audit, और अगर आप compare करें audit को, तो now I think audit has already transformed. क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये जो
ऑटोमेटेड टूल्स आए हैं हमारे पास ऑडिट में, सॉफ्टवेयर आया है, तो उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई है ऑलरेडी. We don't need to select the transactions. We just need to put the data and the system will do the work for us. तो ये ऑडिट में ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी एक हम अगर हम देखें तो हमारे पास हो गई है. अच्छा, अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट आई फील कि सबसे पहले तो अगर इसमें ये देख लें कि व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स इन दिस, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो है माइंडसेट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन द फाइनेंस पर्सनल, कि ये प्लस जो कैपेबिलिटीज इन यूजिंग द कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स, तो ये आई थिंक जब तक हम इससे ओवरकम नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम से, आई डोंट थिंक सो कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकेगी. तो ये तो एक मैं कहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, इससे हमें ओवरकम करना पड़ेगा. अच्छा, कौन हु विल लीड? आई थिंक दिस विल बी अ टीम एफर्ट. आई थिंक द ऑडिट फर्म्स कैन नॉट ओनली डू इट, the companies cannot only do it, and plus the regulators also cannot do it. It has to be a joint effort. उसमें सबको एक will have to come up with a solution, will have to sit on a table कि इसके steps create करने पड़ेंगे हमें, steps के. और definitely ये ऐसा नहीं होगा कि अभी we are sitting in 2021 तो 2022 में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं possible. It will need at least 5-6 years, even 10 years ये चाहिए होगा. मगर आज से हम स्टार्ट करते हैं हम लोग. उसमें लीड जो मेन, अगर आई वुड से कि जो अगर मैं रेटिंग करूं तो डेफिनेटली जो कंपनीज हैं जो जहां फाइनेंस फंक्शन इटसेल्फ है, तो दे आर मोर रिस्पांसिबल एंड दे विल हैव टू टेक द लीड. एंड एज आई जस्ट मेंशन्ड कि इट विल बी अ जॉइंट एफर्ट. इसमें सब पार्टनर्स को आना होगा. एंड आई थिंक ये कभी डिस्कशन भी हुआ था कि नाउ every profession is a business partner. अब वो जमाना रहा नहीं है कि ऑडिट एंड अकाउंट्स बिल्कुल अलग हो गए. वी आर बिजनेस पार्टनर्स ऑफ द एंटिटीज वी आर ऑडिटिंग. आई थिंक द कंपनीज आर बिजनेस पार्टनर्स विद द कस्टमर्स. अगर इसमें कोई भी एक चेन ब्लॉक होती है तो सबको सफर करना पड़ेगा. तो ये मुझे लगता है ओवरऑल एक थोड़ा सा जो है ना, इसको द माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द माइंडसेट विल हैव टू बी चेंज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू. अच्छा देखिए, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो हमें वैसे ही लगता है ट्रांसफॉर्म हो. फॉर एग्जांपल, जो एक कैब जो आप लेते थे सड़क से, और अब जब उबर करीम आ गए तो दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड द एंटायर इंडस्ट्री. सिमिलरली, जब आप पहले फूड मंगवाते थे या पहले आप खुद जाके टेक अवेज लेते थे, आप नाउ फूड पांडा और ऐसी चेंज आ गई हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो मेरा तो ये मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज बिजनेस ड्रिवन. ठीक है, और इसमें जो हमारे अपने अपने बिजनेसेस हैं, सूनर और लेटर माय व्यू इज दैट कि हर बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. द प्रॉब्लम इज कि हम जबरदस्ती, वो जो होता है ना, पीछे आते आ रहे हैं, लेगिंग बिहाइंड. और एक होता है कि खुद से इसको समझना, विजुअलाइज करना एंड देन स्टेप्स लेना. आपने दो बड़ी अच्छी चीजें कही, माइंडसेट एंड द स्किल सेट. अब सवाल ये है कि माइंडसेट कौन बनाएगा, और स्किल सेट अभी तो हमें पता ही नहीं है. बहुत सारे लोगों को बातें तो हम करते हैं बहुत सी वेबिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह पे, लेकिन आपको लगता है कि जो हमारे करिकुलम है यूनिवर्सिटीज के, प्रोफेशनल बॉडीज के, या इवन रेगुलेटर्स ने अभी तक उस पर कितना काम किया है, वो चीजें. फिर जब जो आप कह रहे हैं कि मिल के काम करेंगे, तो मुझे तो एक गैप नजर आ रहा है. हम एक साथ बैठते ही नहीं है, रेगुलेटर, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, सब अपनी अपनी दुनिया में बातें सब अपनी अपनी दुनिया में कर रहे हैं. लेकिन कौन से ऐसे फॉरम्स हैं जहाँ ये तीनों एक जगह बैठ के उस पर करते हैं? इस पे मैं दाऊद के भी व्यूज चाहूंगा. दाऊद, आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, एज यू मेंशन के फूड पांडा और बाकी सारी जो उबर वगैरह है, ठीक है, कुछ तो डेफिनेटली बिजनेस ड्रिवन है, कुछ अब कस्टमर ड्रिवन भी हो गए. ठीक है, अब कस्टमर भी बहुत अवेयर हो गए. ठीक है, कस्टमर को भी अब डेटा, अब मोबाइल आपके हाथ में, ठीक है, एंड ये मोबाइल अब तकरीबन आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो वाई एन इंडस्ट्री जो अभी इस वक्त शायद वो एआई नहीं आ रही है, एआई का यूज़ नहीं कर रही है, वो भी अब फील कर रही है कि मुझे भी इस मोबाइल ऐप में अपनी चीज़ पहुंचानी है. ठीक है, आपने उन 2-3 इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, मैं इधर फाइनेंशियल सर्विस की एग्जांपल दूँ. शायद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिस इंडस्ट्री ने एआई को एक्सेप्ट किया है या एट करंट रेट जिसमें बहुत एक्सेप्टेंस हो रही है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज है. ठीक है, एएमएल की बात की खुरम ने थोड़ी देर पहले,
रेगुलेटर्स ने, ये मैंने काफ़ी खासकर पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में FATF वगैरह के बाद बड़ा हॉट टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलेटर इंडस्ट्री के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। आप मशीन लर्निंग यूज़ करते हुए फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग यूज़ करते हुए कस्टमर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम ये नो योर कस्टमर का फॉर्म भरते हैं हर जो फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इसमें मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं वो यूज़ कर रही है, ठीक है। तो वाई आर वी लेकिंग बैड? हम आज भी वही, मैं रिसेंटली भी एक दो जगह पे देखा, वही घिसे पिटे फॉर्म्स है वो फिल किए जाते हैं, ठीक है। आई गेस ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर रेगुलेटर इनको पुश करे कि भाई इसको ऑटोमेट करें, इस प्रोसेस को, आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करें, आपका फ्रॉड डिटेक्शन फ्रॉम डे वन आपका सिस्टम आइडेंटिफाई करके दे देगा कि ये कौन सा कस्टमर है, ये कस्टमर क्या करने जा सकता है, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल कि कहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। मैं अगर एक थोड़ी सी एक वेल्थ क्रिएशन वाली इंडस्ट्री में चला जाऊँ, अगेन मैं अब थोड़ा सा पाकिस्तान के पैराए में और कंपेयर करते हैं हमसे डेवलप कंट्रीज में कि वो कहाँ तक पहुँचे रहे फाइनेंशियल सर्विसेज में, वेल्थ मैनेजमेंट में। इस वक्त रोबो एडवाइजर्स की बात की जाती है, ठीक है। रोबो एडवाइजर अब मेरे ख्याल में जितने भी एक ह्यूमन एडवाइजर उनकी जॉब को ऑलमोस्ट ले लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टन एरियाज, ठीक है, जहाँ पर अभी भी एक मेरे ख्याल में, फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा ही ओल्ड फैशन कस्टमर हूँ, मुझे फिर भी अच्छा लगेगा कि शहजाद मुझे खुद से भी बताए कि मेरी वेल्थ मैनेजमेंट कैसी होगी, लेकिन शहजाद जहाँ पीछे से जो डेटा ड्राइव कर रहे हैं वो रोबो एडवाइजर करके दे रहा होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में आप ठीक है, लीड बिजनेस ने भी लेनी है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ फंक्शंस को कस्टमर भी ड्राइव कर रहे हैं कि आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको कस्टमर, अब जैसे हमने स्किल्स की बात की थी, मैंने कहा था कि एक आज के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जब वो फाइनेंस में एंटर हो तो उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो। यू नो मोर जस्ट पार्ट ऑफ फंक्शन के जहाँ बैठे हुए बैक एंड पे अपना बस डेटा एंड करे, नो। अब आपके लिए कस्टमर कौन है? आपके लिए उस कस्टमर उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस के अंदर बाकी डिपार्टमेंट से आप फर्दर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं बाहर के कस्टमर के साथ। तो ड्राइव करने वाली फोर्स तो डेफिनेटली बिजनेस इटसेल्फ होगी, लेकिन आपको दूसरी इंडस्ट्रीज भी ड्राइव करवाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडस्ट्री AI लेके बैठी हुई है तो बाकी इंडस्ट्रीज आज भी पुराने तरीके से बैठी है। तो आना तो सबको ही है, कल आना है, कुछ लोग आज आ रहे हैं, जो लोग उस पेस को, उस प्रोसेस को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द लीड, वो अपनी इंडस्ट्री में वो बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है, दे आर द बिग विनर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर वही विनर्स रहेंगे, बाकी भी आ जाएंगे, लेकिन जिसने लीड ली वो आगे चले जाएंगे। और इसमें CFO का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। CFO शुड अंडरस्टैंड कि उसने अपने स्ट्रेटेजिक प्रोसेस के लिए कितना टाइम एलोकेट करना है। क्या वो आज भी वो रिडंडेंट मैनुअल प्रोसेस के लिए वो खुश है कि मैं उस तरह चलता रहा, या वो चाह रहे हैं कि उसको मैं ऑटोमेट करूं और मैं अपना टाइम बचाऊं, अपनी कॉस्ट बचाऊं, अपनी एफिशिएंसीज इंप्रूव करूं और मैं बिजनेस के लिए वैल्यू ड्राइव करूं। मैं मैकेंजी के एक सर्वे पढ़ा था, मैकेंजी ने एक प्रोसेस फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने 10 साल की पीरियड पर स्टडी किया। उसका रिजल्ट ये था कि जितने भी CFOs थे उन्होंने कोई अराउंड 39% कॉस्ट रिड्यूस किया अपने डिपार्टमेंट का, 39% के अराउंड एफिशिएंसी अचीव की। नाउ अगर मैं इस नंबर को देखें, दैट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। और यहाँ से तो हर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू रखेगी इन चीज़ों की, क्योंकि हम फेस टाइम की बड़ी वैल्यू रखते हैं, हमारे पास लोग भी बहुत हैं, हम ओवर टाइम भी बहुत लगाते हैं। मैं और खुर्रम जिस फील्ड से हैं, ऑडिट, इसमें हम बहुत ओवर टाइम लगाते हैं, लेकिन हम जिस फील्ड जहाँ हम ऑडिट करते हैं वो लोग भी फाइनेंस में इतना ही टाइम लगाते हैं। हम ये टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री इटसेल्फ भी ड्राइव कर रही है, लेकिन आपको बाकी इंडस्ट्रीज भी आपको फोर्स करेंगे, और रेगुलेटर को डेफिनेटली सर्टन एरियाज में बैठना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा ऑटोमेशन में। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, जस्ट टू ऐड स्मॉल पॉइंट, करंदाज SCCP के साथ बहुत सारे ऑटोमेशन में काम कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। SCCP खुद भी अब बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर रही है, ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस, और वो अभी एक मुश्किल टॉपिक है, पाकिस्तान को टाइम लगेगा, बट स्टिल दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जहाँ आप जस्ट वन क्लिक आप कोई चीज़ एंटर करते हैं और आपको कुछ मिल जाता है। तो देर आर गुड थिंग्स गोइंग ऑन, लेकिन स्टिल हम बहुत पीछे, हम जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं बहुत पीछे, बट वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। कुछ चीज़ें हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं, और कोविड के बाद तो मेरे ख्याल में अब वो लैगिंग बिहाइंड या सुस्त रहने वाला या सोचने वाला
मेरे ख्याल में वो एलिमेंट तो अब खत्म ही गया लाइफ से। जी थैंक यू दाऊद। अच्छा ये बताइएगा जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, क्योंकि खुर्रम ने अभी बात की कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, माइंड सेट है, स्किल सेट है, कितना रोल है प्रोफेशनल बॉडीज का या इंस्टीट्यूशंस का? फॉर एग्जांपल कैस्पेट है या और यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपके प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आई कैप, ICMA, पिफा, सो इनका कितना रोल होगा? जी खुर्रम साहब हम हमें सुन रहे हैं? जी जी जी। सो हाउ डू यू सी, और दूसरा ये कि वो कैसे स्टेप लेंगे, वो क्या करिकुलम चेंज करेंगे? तो वो करिकुलम स्टूडेंट्स पे कैसे आगे जाके फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? और जो एग्जिस्टिंग हमारा जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है इंडस्ट्री में है, फर्म्स में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? और आप क्या से तीन क्या मेजर चीजें आप रेकमेंड करेंगे टू बी डन बाय यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल बॉडीज? ठीक है, आई थिंक द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज चेंज इन द करिकुलम। अब अभी मुझे जैसे यूनिवर्सिटीज का तो इतना आई एम नॉट वेरी फेमिलियर कि उनका करिकुलम क्या है, लेकिन आई एम मतलब मोर देन लाइक 90% श्योर कि दे आर नॉट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, वो नहीं होंगे, वो चेंज नहीं करेंगे आप। एंड अच्छा, ये जब आप ये चेंज करेंगे ना, दिस विल क्रिएट आई वुड से अ चेन रिएक्शन। आपका लर्निंग का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका एग्जामिनेशन चेंज, टेक्निक्स चेंज हो जाएंगी। मुझे ये लगता है कि हमारे पास हम लोग वी डिजाइन द एग्जाम्स नॉट टू टेस्ट द नॉलेज बट टू ये करने के लिए बताते हैं कि कौन कितना फेल करने का रेशो बढ़ना चाहिए हमारा। ये मेरा दिस इज माय पर्सनल व्यू। ये एज कंपेयर टू अदर अदर जो इंस्टीट्यूट से आप उनके पेपर्स देखें, अगर वो भी डेफिनेटली ऐसा नहीं, लेकिन उनके एक जब पेपर आप देखते हैं तो उसमें लगता है कि नॉलेज टेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये और दिस इज नॉट फ्रॉम, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल, इट शुड गो फ्रॉम द कॉलेज लेवल, फ्रॉम इवन फ्रॉम द स्कूल लेवल, वहां से जाके चेंज होना पड़ेगा। और आई थिंक स्कूल में मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ी सी चेंज आ रहा है ये स्कूल में, स्पेशली अगर आई थिंक हम सबको पता होगा जो प्री स्कूल की जो आजकल होती है स्टडीज, वो तो अगर हम लोग पढ़ते उस जमाने में तो शायद क्लियर भी ना कर पाते। तो अब वो चीज को अब ट्रांसफॉर्म करना है, ये इनको ऊपर ये हमारे फॉर द हायर स्कूल, फॉर द कॉलेजेस, फॉर द यूनिवर्सिटी। अदर देन दिस I strongly feel that no matter what we do, we will not be able to produce good professionals, and resultantly हम वो रिजल्ट से नहीं आ सकेंगे हमारे पास जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, एक चीज सर आपने लास्ट टाइम जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कहा था, जो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उसको सिर्फ ये देखें, वी जस्ट गो बैक फॉर 10 years, मुझे याद है till 2010 and 11 Nokia was the global leader in the mobile industry. अच्छा, till 2010 and 2013 BlackBerry was the global leader. अब आज अगर आप किसी से पूछें कि where is Nokia, where is BlackBerry, वो कोई आपको नजर नहीं आएगा। Why? Because they were not ready to transform the business. तो यही आई थिंक यही प्रिंसिपल हमें लेना होगा कि अगर we will not change तो other professions and probably मतलब will take over the finance function. This is the most dangerous thing I can feel and I can foresee. अब इसमें इनफैक्ट डेफिनेटली जो रोल आएगा इसके बाद, जो रेगुलेटर्स जो हैं, जो भी रेगुलेटर्स हैं, जैसे आपने यू मेंशन्ड ICAP, ICMA, अदर इंस्टीट्यूट, कैसबिट है, अब इनको इनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बिकॉज ये कौन करेगा, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑफ द गवर्निंग बॉडी। अब वहां डेफिनेटली अब वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि बिकॉज वी डोंट नो द एनवायरनमेंट देयर, अभी वहां कैसा होगा, लेकिन दे विल हैव टू टेक द लीड। और अदर देन दैट आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इसी से कंटिन्यू मेरा सवाल है पूरम से ही, आर वी लीडर और फॉलोअर? क्योंकि आपने करिकुलम चेंजेस की बात की, करिकुलम चेंजेस तो हम हमेशा से देखते आए हैं, तो हम हमेशा चेंज करते हैं, बट मेरा ये व्यू है कि दुनिया पूरी चेंज हो चुकी होती है, ICAW, CPA सब चेंज कर चुके हैं, हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, तो उसके ऊपर फिर हम बैठते हैं, फिर हमें 5 साल 7 साल लगते हैं, हम अपने रिवाइज करिकुलम के साथ आ सकते हैं। तो क्या यही चलेगा मॉडल, या आपको लगता है कि दिस नीड्स टू चेंज और हमें लीडिंग रोल में आना पड़ेगा? इसीलिए तो हम पीछे हैं, इसीलिए तो हम पीछे, बिकॉज वी आर डेफिनेटली फॉलोअर्स, एंड नॉट ओनली इन फाइनेंस, आई थिंक इन एवरी फील्ड। If you talk about any other profession,
probably we are taking the bench, we are using the benchmarks from other professions from a different part of the world. ये तो कोई this is not probably a secret, ये तो है confirm. तो ये तो we जब तक हम followers रहेंगे तो हम चेंज नहीं कर सकते. And you rightly pointed out कि अब हमारे पास इतने mindset, हमारा जो इतने हमारे जो minds हैं वो इतने capable हैं कि why don't we come up with some different different subjects or different. आप मैं you will be surprised, मैं check कर रहा था जो A levels है, I thought कि A levels के तो total शायद 20 subjects होते हैं. मुझे उस दिन पता चला कि I think A levels के subject शायद 40 हो चुके हैं. You can opt, you can go and sit in the exam for 40 और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो. अब वो कैसे आ रहे हैं? वो ऐसे ही तो आ रहे हैं कि अब वो सिर्फ वो नहीं हो रहा कि we are giving English literature, maths, ये नहीं हो रहा. वो तो और आप मैं एक एग्जांपल दूं, one of my I would say कि जो मेरे closest friend का एक relative था, तो he was a kid, तो वो उससे पूछा कि what do you want to become. अगर आप हमारे उसमें जाएं तो I think 99% आता था we want to become a doctor, lawyer और engineer, ये तरह आती थी. वो कह रहा है I want to become a YouTuber. अब हमारे जो नीचे लेवल के लोग हैं वो उन हमसे ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग है. और यही मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्म. एंड स्पेशली आफ्टर कोविड अगर आप देखें कि द इंडस्ट्री व्हिच इज लीस्ट अफेक्टेड, बल्कि लीस्ट अफेक्टेड नहीं, व्हिच हैज टेकन द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस इज आईटी बेस्ड इंडस्ट्री. अगर आप ये देखें, हम जिस तरह ये वेबिनार्स कर रहे हैं, 2 years back there was no concept of this webinar. तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज, और probably I think this is the new normal. ये तो COVID or no COVID, this is going to happen. So if we don't adopt these things in finance, so probably the finance function what we are operating will be probably obsolete in 10 years. जी दाऊद, आपका क्या व्यू है? We would be obsolete in 10 years, and how do you see the role of professional देखिए, bodies? अगर आप अकाउंटेंट ही प्रोड्यूस करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे. ठीक है, अगर आप बिजनेस पार्टनर प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेटजी पार्टनर प्रोड्यूस करेंगे, कोर फाइनेंस के लोग प्रोड्यूस करेंगे तो यस आप रहेंगे. और ऐसा नहीं है जैसे एज आई सेड कि अगर 85 मिलियन की जॉब जाने वाली तो 97 मिलियन इसी फाइनेंस में क्रिएट होनी है. बट जैसे आपने कहा करिकुलम, उसके लिए आपको अपना करिकुलम उस तरह डिजाइन करना पड़ेगा. आप उस 97 मिलियन में, अभी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, थोड़ी बहुत जो मेरी इंटरेक्शन इंस्टीट्यूट से हो रही है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, चाहे वो अकेडमिक हो या दूसरे, आई डोंट थिंक हम उसमें 1% भी डाल रहे होंगे आगे 10 सालों में, क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे वो कुछ. करिकुलम चेंज करना इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट कि आपने कह दिया मैंने इसका नाम बदल दिया तो करिकुलम चेंज. करिकुलम चेंज करना इज अ साइंस. आपके पास रिसर्च की टीम होनी चाहिए. मैं आई विल बी लिटिल बोल्ड और शायद बुरा भी लगे किसी को, मैं फॉर एग्जांपल कैस्पिड इस वक्त हम बैठे हुए, तो कैस्पिड में शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर, रिसर्च की इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि वो बड़ी कॉस्ट है. इसी तरह अगर आप आई कैप या बाकी भी लोग हैं वो भी नहीं करते क्योंकि वो बड़ी कॉस्ट है. लेकिन इन द लॉन्ग रन यू कैन ओनली बी अ लीडर अगर आपके पास इन हाउस रिसर्च होगा. अच्छा, रिसर्च हमारे पाकिस्तान का मसला है. ठीक है, हम हार्डली किसी एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, या वो रिसर्च जो कि जिसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो. ठीक है, खैर अभी तो हम लोकल सिग्निफिकेंस भी उसके लिए पैदा कर पा रहे हैं. आप लोगों ने CFO क्लब के थ्रू एक एफर्ट की हुई कि भाई कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि आज भी एकेडमिया की रिसर्च एकेडमिया तक महदूद रहती है. इंडस्ट्री को कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, ना मैं वो बंदा प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ स्कूल कॉलेज से, और ना इंडस्ट्री उस चीज़ के लिए रेडी कि मैं उसको उस पर खर्च कर सकूँ. मैं अगर एक छोटी सी बात कहूँ, ट्रेनिंग आज भी अपडेटेड के रहती है. ट्रेनिंग में कोई इन्वेस्ट नहीं करते. इंडस्ट्री को लगता है कि मैं उसको ट्रेन करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे. बट दैट्स अ गुड थिंग, आप ट्रेन करो, बंदा खुद से बनाओ. लेकिन इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि लड़का तो मेरे साथ जो बच्चा आ रहा है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तैयार होकर आना चाहिए. कॉलेज यूनिवर्सिटी कहते हैं मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ, आप प्रैक्टिकल मास सीख ले. तो ये इतना बड़ा वाइड है जिसके चक्कर में हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो आप एक फंक्शन के अंदर कर रहे हो, इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपकी ह्यूमन कैपिटल है. अगर आप उसकी क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे, मैं आपके लिए कल पे एक बहुत अच्छा AI का टूल लेके आ गया, ठीक है, लेकिन उसको यूज़ करने वाले लोग नहीं, उसके लिए लोग रेडी नहीं है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो फेल हो जाएगी, चाहे मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. तो द पॉइंट इज, जितने भी आप इंस्टीट्यूट के नाम दे रहे हो, पहली बात तो ये कि वो ये जो करिकुलम चेंज करने वाली बातें कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट विदाउट एनी रिसर्च. ठीक है, जस्ट कलर चेंज करने से, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता. आज हम ब्लॉकचेन कब से सुन रहे हैं,
आप मुझे कोई एक भी यूनिवर्सिटी बता दें कि उन्होंने ब्लॉकचेन पे कोई डिटेल कोर्स डेवलप किया हुआ है। मैं डिटेल कोर्स की वो बात करूँ जिसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बच्चे को समझ आ जाए। ब्लॉकचेन तो मैं पढ़ लूंगा, मैं आपको बुक से अभी इस वक्त में 1 घंटा तक रीड कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या यूनिवर्सिटी करा रही है, क्या ये बात हम क्वालिफाइड लोग बैठे हुए, मेंबर्स बैठे हुए इंडस्ट्री, हम में से कितने लोग हैं जो ब्लॉकचेन सुनते हुए तो कब से आ रहे हो, खासकर जब से 2018 में क्रिप्टो करेंसी प्रोमिनेंस में आई तो लोग समझे कि अच्छा ब्लॉकचेन का मतलब है क्रिप्टो करेंसी। दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ब्लॉकचेन तो सब उससे पहले सप्लाई चेन में किंग बना हुआ था। तो रिसर्च का एलिमेंट हमारा इतना बुरा है, जब तक वो हम स्टैब्लिश नहीं करेंगे, वहाँ थोड़ा पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम फॉलोवर ही रहेंगे। और फॉलोवर में भी हम बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में फॉलोवर की भी हम थर्ड फोर्थ कैटेगरी में, जब सब फॉलो करते उसके बाद हम फॉलो करते हैं। दिस इज वेयर वी आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, या जब FATF और ये जब इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, वहाँ हम अनडॉक्यूमेंटेड वैल्यू होते हैं, वहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वहाँ हम मैनुअल बैठे होते हैं, वहाँ हम पेपर में बैठे होते हैं, तो फिर हमें स्ट्रगल हो रही होती है कि उसको कन्वर्ट कैसे करें। फेयर इनफ, तो पॉलिटिकल एलिमेंट भी उसके होंगे, लेकिन अगर मैं अपने एंड से सोचूं, जरा ईमानदारी सोचे, तो हम बहुत कुछ, जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, नो योर कस्टमर एक फॉर्म में, वो आज भी मैनुअल हो रहे हैं, जबकि वो आप बहुत इजीली टेक्नोलॉजी डेटा से यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल में फर्दर ऐड करूँ यहाँ पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर बैंक ऑफ अमेरिका और बड़े बड़े बैंक से, वो ट्विटर से, कस्टमर के ट्विटर से डेटा रिव्यू करते हैं और उसके बेस पे वो अपनी प्लानिंग करते हैं कि मेरा अगला जो मुझसे जो क्रेडिट लेगा, मैं जो बोरोवर होगा उसकी क्या सेंटिमेंट्स है, उसको मैं किस तरह रीड करूँ, जस्ट फ्रॉम द ट्वीट्स। तो दुनिया कहाँ जा रही है, हमें वो ऐसे नहीं पहुंची। ऑब्वियसली हमें इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू बोथ फॉर बीइंग ऑनेस्ट। आपने बिल्कुल ऑनेस्टी से बताया कि माइंडसेट के चैलेंजेस हैं, स्किल सेट के चैलेंजेस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे नहीं है, एंड वी आर फॉलोअर्स। तो मुझे ये बताइए कि अगर एज ए कैंडिडेट, एज शहजाद डेडी, देखिए इंस्टीट्यूशंस में जो भी हैं गैप्स हैं, करिकुलम जो मैंने पढ़ा वो 20 साल 30 साल पुराना पढ़ा, आज मैं मौजूद हूँ एक कंपनी में CFO, या से कि और कोई बंदा है जो फाइनेंस मैनेजर है या किसी और रोल में, ये फ्रेश एक क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, वो कहाँ इन्वेस्ट करे अपनी लर्निंग में? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने इसको सोशल मीडिया पे भी ये पोस्टर चलाया था आज के वेबिनार के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप हमें बताइए, एक फीडबैक दीजिए कि व्हाट वी शुड डू ना, हम क्या स्किल री स्किलिंग अगर हम बात करते हैं तो कौन सी स्किल्स हैं जो मैं ऐड करूं, और कौन सी टूल्स हैं जिसको हम रीटूलिंग कहते हैं, तो कौन सी टूल्स हैं I should be learning on those tools now ताकि वो फ्यूचर में मुझे काम आए। So as an individual candidate in any finance profession या accountancy profession में हो, उस आप दोनों की मुझे recommendations चाहिए ताकि वो एक की टेक अवेज हो आज के हम इस हमारे इस सेशन के जो हमारे अटेंडीज हैं उनके लिए। जी फरोज। देखिए, अगर इसमें ये देखें ना कि वी कैन अज्यूम कि हम जो टारगेटेड ऑडियंस है वो दे आर वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब रिलेटिवली वेल इक्विप्ड फाइनेंस फंक्शन, क्योंकि वो टारगेटेड ऑडियंस है हमारा। अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, वहां पर जो फाइनेंस फंक्शन है वो तो दैट्स अ सेपरेट चैप्टर। तो अब अगर हम ये देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एक्सपीरियंस इज देयर और एक रिलेटिव कैपेबिलिटी इज आल्सो देयर, वहां पर है। अब हमें आई थिंक दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि हम क्या दो तीन चीजें उसमें निकाल सकते हैं। तो पहला तो आई थिंक मुझे जो एक ऑफ द कफ आई कैन जस्ट थिंक ऑफ के जो हम लोग जिनको कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स कहते हैं, आई थिंक उसके बगैर most probably a finance function in a very, I would say, relative small company also, it is very difficult to run a finance function other than this computer assisted audit techniques. अब वो किस लेवल की होंगी, वो that will depend upon the nature operations of the entity. I think जैसे कि दाऊद also mentioned कि banks, financial institutions जो है उनको उनमें ये ज्यादा चीजें हैं, और I think कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिलेटिवली इक्विप्ड हैं अभी भी। अगर उनको कंपेयर करें, अगर आप दूसरी लाइक जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, दे आर रिलेटिवली इक्विप्ड, जो आईटी इंडस्ट्री है दे आर रिलेटिवली इक्विप्ड, बट दिस इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। तो अब जो
हमें जो चेंज चाहिए वो चेंज चाहिए ही है। और आई थिंक इसमें मुझे ये लगता है कि एज एन आईकैप मेंबर, आईकैप ने अपने कोर्स में ये आईटी रिलेटेड बहुत चेंजेस किए हैं लास्ट 5-6 ईयर में, ये की है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि उनका वो ये फाइनल लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है, लेकिन as far as I recall, there has been certain changes in this. So this is a good step. So तो ये अगर हमें एक की अगर हमें लेना हो पॉइंट पूरी डिस्कशन से कि how can we transform the finance function, first of all, this is a very difficult task. This is a change of mindset. This is very subjective. There is no objective answer. But अगर कोई, if you put a gun on my head and ask, so I would say कि we cannot change or we cannot implement anything other than the even अगर हम जो computer assisted techniques की तरफ नहीं है। ओके जी, दाऊद साहब। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख लूँ, या वो मेंबर्स जो अभी रिसेंटली इंडस्ट्री में मूव हुए, या इवन अगर हमारी तरह के लोग भी बैठे हुए, ठीक है, जो शायद इतने टेक से भी ना हो। 2-3 चीज़ें आप, एक तो मैं खुशखबरी दे दूँ कि भाई अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो स्टिल AI इज़ फॉर यू, ठीक है, आप बहुत आराम से इसमें ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये डाल दें। जब मैं भी पहली बार ये चीज़ें देखी, मैं कह रहा मैं कैसे करूँगा, मुझे तो अभी एक्सेल के फॉर्मूला भी सही नहीं आता। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पास एक नंबर का बैकग्राउंड है, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड है, मेरे पास स्टेटिस्टिक का बैकग्राउंड है। मैं आगे एक छोटी सी चीज़ कहूँ कि जितने भी AI की चीज़ें हो रही है, डीप लर्निंग मशीन, अगर आपके स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, स्टैट्स बेसिकली अगर वो अच्छा है आपका, तो आप बड़े इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन वगैरह इसमें काफ़ी डिटेल में। नाउ मैं एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट, मैं कौन सी स्किल्स ऐड कर सकता हूँ? मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, डोंट वेट फॉर इंस्टीट्यूट कि वो आपके लिए कुछ करें। आज के दौर में आप तो जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो आप खुद अपनी स्किल्स इनहांस करें। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पाइथन एक लैंग्वेज है, अब AI में इस वक्त सबसे किंग लैंग्वेज कहलाई जाती है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने पाइथन देखा, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल सेंटेंसेस यूज करें उस तरह का उसका सिंटैक्स है। तो आप कोई भी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए, प्लीज आप पाइथन जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड ऑल दैट, आप एटलीस्ट बेसिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। सीखिए इसकी बेसिक्स, ये आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप इंडस्ट्री में। बहुत सारा कुछ अभी जैसे हमने कहा ना कि कौन सी स्किल्स बहुत आगे चलेगी, डेटा मॉडलिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेटा मॉडलिंग एक्सेल में तो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त डेटा मॉडलिंग बड़े डेटा पे पावर BI है, टेबलू है। अच्छा, पावर BI का डेस्कटॉप वर्जन फ्रीली अवेलेबल है, आप बैठे उसको करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के बंदों के लिए, दे शुड कम आउट ऑफ एक्सेल, ठीक है। अब एक्सेल से हम बाहर की भी एक बहुत दुनिया आ गई है। एक्सेल की एक लिमिटेशन है, सर्टेन लिमिट पे डेटा पे काम कर रही है। मैं अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैठा हूँ, इंश्योरेंस में बैठा हूँ, तो मैं मिलियंस ऑफ डेटा में बैठा हूँ। मैं जैसे आपने ऊबर और फूड पांडा और इस तरह की कंपनीज की बात की, कितना कस्टमर है, 22 बिलियन के 220 मिलियन की आबादी हमारी, उसमें कम से कम उसके 10 मिलियन तो यूजर, 100 मिलियन यूजर तो होंगे। अब 100 मिलियन तो आप एक्सेल पे नहीं बीट कर सकते, ठीक है। एक चीज़ आपने शायद हमने किसी ने मिस कर दी, जैसे चैट बॉट्स हैं, ठीक है। आप चैट बॉट्स की फंक्शनैलिटी सीख सकते हैं। आज चैट बॉट्स, पहले तो अमेजोन वगैरह अपने उसमें यूज़ करते ही थे, लेकिन आज फाइनेंस में भी यूज़ हो रही है। अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा यूज़ कर रही है। आप इंश्योरेंस कंपनी में बैठे हुए, बहुत डेटा है, बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं, आप एक बड़े बिजी CFO है, लेकिन आपको एक मीटिंग के लिए भाग के जाना और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैट बॉट में जाए, उसमें वो अपने सिंपल से एक क्वेरी डालें, वो दुनिया जहाँ का डेटा आपके सामने समराइज करके ले आती है। तो देर आर थिंग जिस पे आप कर सकते हैं, चैट बॉट सीख सकते हैं आप। डेटा विजुअलाइजेशन के जो टूल्स है, एक तो आप डेटा एनालिटिक्स वैसी सीखें, इन टर्म्स ऑफ थ्योरी सीखें, लेकिन उसके टूल्स भी फिर इवेंचुअली सीखें ताकि वो आपको हेल्प करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लैंग्वेज सीखे, थोड़ा सा कोडिंग के पर्सपेक्टिव से पाइथन सीखे, जरूर सीखे। अगर पाइथन सीखे आप AI को इतना समझ नहीं पाएंगे, AI की किसी एप्लीकेशन को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप फाइनेंस में बैठे हुए, तो प्लीज गो इनटू दिस डेटा मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स। शायद 2-3 साल बाद आप बहुत बेसिक चीज़ों से बाहर आ जाए, आपको ये यूज़ करना है। और अगर आप ये आज नहीं सीख पाएंगे, तो मेरे ख्याल में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप फिर वही ऑपरेशनल एंड के अकाउंटेंट रह जाएंगे, जो डिग्निटी होनी है, चाहे आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, तो कुछ स्किल सेट्स आपने हाईलाइट की, उसमें से अगर मैं सीधा उठाऊं, तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा मॉडलिंग,
इनोवेटिव माइंडसेट, और एक मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ हाउ डू यू रेट कि क्या चीजें इनमें जरूरी हैं या सब इक्वली इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आज करता हूँ अपनी लर्निंग, तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा मॉडलिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव माइंडसेट, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड प्रिडिक्शन अबाउट के फ्यूचर बिजनेस, या आपको क्या लगता है ये किस तरफ जा रहा है? जी। देखिए, जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है वो तो मेरे ख्याल में आपका एआई कवर कर लेगा, ठीक है, प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग, तो वो तो अब आपके हाथ से निकलने वाला है। कौन से एरिया जिस पे आप बहुत काम कर सकते हैं, मैंने कहा कि रिसोर्स की क्वालिटी क्या होगी। अब रिसोर्स की क्वालिटी के लिए उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब शायद एक फाइनेंस के बंदे के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी 5 साल पहले भी नहीं थी, 10 साल पहले भी नहीं थी, लेकिन आज के मॉडर्न, आज के ट्रांसफॉर्मेटिव फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कह रहे हैं कि आप एक बिजनेस पार्टनर, आप उस व्हील का पार्ट बनने जा रहे हो। आप हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला कस्टमर आपका अपना दूसरा बिजनेस फंक्शन है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा मॉडलिंग स्किल्स तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगी। डेटा एनालिटिक्स सिर्फ टूल समझने से नहीं होगा, आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी कि मैं अगर मेरे सामने एक डेटा है तो मैं उसको विजुअलाइज कैसे कर रहा हूँ। टूल तो आपको करके दे देगा, लेकिन उसके ऊपर ह्यूमन टच कि मैं उसको करामत कैसे बनाऊं दूसरे यूजर के लिए। अगर मैं बोर्ड रूम में बैठूं तो उनको मुझसे ये नहीं सुना कि मैंने पावर बीआई से डेटा लिया, टैबलू से लिया, मैंने ऑरेकल से लिया, मैंने उसको विजुअलाइज कैसे किया, मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। ये स्किल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब इसका आप थ्योरी आई होप सो कि अकेडमी पढ़ा रही होगी, अगर नहीं भी पढ़ाई रही तो बच्चे खुद से भी पढ़ सकते हैं। आज की दुनिया में तो बुक्स भी बड़ी इजीली अवेलेबल है, बाकी यूट्यूब वगैरह में मटीरियल काफ़ी अवेलेबल होती है। तो जी। इन स्किल्स के इर्द गिर्द अपनी अपनी सेल्फ लर्निंग जरूर रखिए। जहाँ आप अकेडमी आपको दे भी दोगे, अपनी डिग्री आपको बता भी दोगे, लेकिन इन्हांस करें अपनी स्किल्स हर एक डिग्री के साथ। मैं अगर इलन मस्क टेस्ला में कहता है कि मुझे डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए, अब मुझे स्किल वाले लोग चाहिए, तो अभी शायद वो इतना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाके हर कोई यही कहेगा, इफ यू हैव स्किल कम अप। स्किल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, आपकी थ्योरी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक दो क्विक क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक ऑडियंस का क्वेश्चन है, छोटा सा व्यू पॉइंट दोनों को चाहिए। हाउ हैज द डिजिटलाइजेशन ऑफ इम्पैक्टेड डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज इम्पैक्टेड द करियर्स एंड द प्रोफेशन? क्विक आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। खुर्रम। पहले तो आई थिंक वी नीड टू चेक कि इन पाकिस्तान इज देयर अ डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी। I think ये पहले तो first we need to answer that question. I would say no. अगर आप हमारा जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर देखते हैं वो आई थिंक दाऊद ने एक इतने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके प्रॉब्ली वेल सबसे दे आर द बेस्ट इक्विप्ड इंस्टीट्यूशंस इन आईटी, दे आर स्टिल यूजिंग सर्टेन फिजिकल फॉर्म्स. I think my view on this point के we are not there, अभी तो हम उस पे हैं ही नहीं, तो वो तो जब आएगा then we will see कि what will happen. And Daud also touched on this topic. Is it possible that we will lose some careers, some jobs, but I think जो इसका एंड रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट हम लोग इसमें बेनिफिशियल पोजीशन में ही होंगे। अगर हम लोग आई थिंक आपने शायद कुछ बताया था 80,000 जॉब्स, वी विल 80 मिलियन का कुछ लूज हो रहा था एंड प्रॉब्ली 90 मिलियन का क्रिएट हो रहा था। 90। तो ये तो अभी तो हम लोग इज दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाकिस्तान, अगर इसको पूरे को थोड़ा हमारे रीजन को देख लें तो अभी तो हमें बहुत आगे जाना है इस डिजिटलाइजेशन के अंदर, और इसको अपने पहले ये लेके आना है, देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू सी that what will happen to certain careers and especially the finance, because we are all the finance guy और हमें तो अपना प्रोफेशन को मेंटेन करना है and we have to be ambassador of our profession कि किस तरह ये बिल्कुल टॉप पे रहना चाहिए प्रोफेशन, जैसे ये 20 years बैक होता था। तो ये आई थिंक माय व्यू इज इसके वी आर अभी तो हम वी आर नॉट देयर येट। जी दाऊद साहब, क्विक कमेंट। नहीं, खुरम ने बड़े एक आसान लफ्जों में कहा कि हमें डिजिटलाइजेशन अभी हमने की नहीं, ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे बाकी दुनिया में कहा जाता है कि ब्लॉकचेन आके कोई आगे 5-10 सालों में फाइनेंस को स्वेप असाइड कर देगा, फेयर इनफ, बिल्कुल करेगा जिन जिन कंट्रीज ने अडॉप्ट ये सारी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की थी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री आई डोंट थिंक सो। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
हमारे और बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन कंसिडरिंग दैट इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। हर वो बंदा जो टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, जो फ्यूचर को समझ रहा है, उसके लिए तो बहुत वैक्यूम है, ठीक है। वो सारे इवन मैं शायद किसी कुछ रोज पहले किसी से बात कर रहा था, पाकिस्तान में एआई का कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत बुरा है। मैं अभी भी जितनी एप्लीकेशन देख रहा हूँ, अगर मैं उसे कहूँ कि दे आर द एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल बट दे आर नॉट एआई, ठीक है। बहुत रेयरली कंपनीज जो है ना एआई पे काम कर रही है। इवन फिनटेक, बहुत सारी फिनटेक अभी आ रही है, उनका फेलियर क्या है, दे आर एक्चुअली नॉट एआई। भले आप अपने वेबसाइट पे कुछ खाने एआई वो नहीं है। तो बहुत बहुत वैक्यूम है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। बट अभी शायद हम इतना लूज नहीं करेंगे, ना हम जॉब लूज करेंगे, लेकिन अपने करियर को उसकी तरफ, मेरे ख्याल में उसकी तरफ फैशन करें, उसकी तरफ ट्रांजिट करें, तो बहुत अच्छा होगा। खासकर वो बच्चे जो अभी रिसेंटली निकल रहे हैं ड्यूरिंग द 20s 30s, उनके लिए तो अभी है चीज़ें जो कि अपने आप को इक्विप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, बट सिंस इट इज ऑलरेडी 5, सो लेट्स गो विद द ऑडियंस क्वेश्चन। नौशीन, आप ऑडियंस के क्वेश्चन कर लें। आखिरी में मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा। सो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है दोनों गेस्ट के लिए। ओवर टू यू नौशीन। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल डिस्कशन। और मेरा ख्याल में ऐसे बहुत सारे सवाल जो अभी कुछ ऑडियंस ने हमसे डिस्कस भी किए, उनको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि रेगुलेटरी बॉडी का रोल्स इसमें क्या हो। और अभी आपने जैसे कहा भी कि जब तक मिल के सब नहीं बैठेंगे, चाहे उसमें रेगुलेटरी बॉडी, अब उसमें चाहे एकेडेमिया की हो, HEC है, SCCP है, और FBR है, या फिर हमारी अपनी जितनी वो बॉडीज़ जो कि इन पूरे सिस्टम्स को लेके चल रही हैं, ICAP है, ICM है, जब तक हम करिकुलम को उस मुताबिक डिज़ाइन करके लेके नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास आएंगी। और बात शुरू हुई थी फाइनेंस से, तो फाइनेंस पे भी आके थोड़ी सी ख़त्म होती है कि मोस्टली हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं वो इसलिए जो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर कि भाई हमें जो है फंड्स एलोकेट नहीं होते, या होते हैं तो वो जो करप्शन होती है बॉडीज़ के अंदर स्पेशली, वो ले जाते हैं और वो पैसा सही से लग नहीं पाता। और स्पेशली जो आपने हाईलाइट किया कि रिसर्च के अंदर चाहे वो गवर्नमेंट साइड हो या जो भी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो नो डाउट। अच्छा सर, कुछ जो यंगस्टर्स के कुछ क्वेश्चन ये थे कि वैसे तो किसी हद तक आपकी ये बातें कवर हो ही गई हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, इन्होंने पूछा है कि ड्यूरिंग 2020 टेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्रोग्रेस वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट फॉर accounting and finance professional in the year 2025 in Pakistan? Okay, so देखें, एक तो ये है कि ये तो हमें पता लग गया है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, कि probably now we will have to live with this COVID phenomena, and even after COVID, Yes, ma'am. the mindset of the business people will definitely change, and with that change, because the finance people are also living in the normal environment, they will have to change. अच्छा, अगर आप देखें तो अगर कुछ ऑलरेडी चेंज तो आ गया है, अगर आप सिर्फ ये कंपेयर करें इस वक्त के जो मेजर डिसीजंस होते थे, दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल आई कैन गिव यू। हमारे लोकल लॉ में एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है AGM होना शेयर होल्डर्स की, ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। नाउ विद दिस चेंज, ये विद दिस चेंज, अब व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो कि वी आर हैविंग दिस मीटिंग ऑन Zoom और एनी अदर दिस IT नेटवर्क, तो ये probably this will continue till 2025 and possibly after 2025. ये तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैंने दी, लेकिन अदरवाइज द डे टू डे ऑपरेशंस एक जो आई थिंक, जो अगर आप ये देखें, जो बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस, तो ये जो अब ट्रैवलिंग खत्म हुई है तो उससे जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जितना क्लोज आया है, आई डोंट थिंक सो कि ये लास्ट 50 इयर्स में ऐसा कभी देखा होगा हम लोगों ने। नाउ we can ask anyone in the US, in UK and anyone anywhere in the world, तो ये तो ऐसा चलना ही है। तो ये इसमें what I feel कि efficiency increase बहुत ज्यादा है, प्लस इसमें एक ये चीज में मुझे ये लगता है कि शायद हमारे पास ये इतना नहीं है कि जो ट्रेवलिंग टाइम सेव हुआ है,
जो ग्लोबल उसमें डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान में भी इफेक्ट हुआ है, वो बहुत पॉजिटिव चेंज आया होगा। क्योंकि अगर आप इफ यू सी इन द वेस्ट साइड, नॉर्मली 2.5 आवर्स ट्रेवलिंग इज नॉर्मल डेली। पाकिस्तान में भी ये होगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम, वी आर स्टिल डूइंग वर्क फ्रॉम होम। कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन probably we will be going for this work from home concept, and 2025 or moving forward 2025, probably I can see that जो हमारा staff है, physical staff, that will be definitely reduced. अच्छा सर, एक क्वेश्चन ऑडिट से रिलेटेड है क्योंकि वो फाइनेंस और अकाउंटिंग के हिस्से में ही आता है। तो व्हाट इज अ चैट बॉक्स ऑडिट असिस्टेंस एंड व्हाई आर फर्म्स यूजिंग दैम? Daud, would you like to answer? Go on, आप कर दें आंसर। जी, देखिए, ऑडिट क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑडिट फर्म क्यों यूज नहीं कर रही? क्यों यूज कर रही है चैटबॉट्स की करिए। सिग्निफिकेंस? नहीं तो ये तो अच्छा, दिस इज नॉट रिलेटिंग, प्रॉब्ली दिस इज नॉट रिलेटिंग टू द, आई वुड से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक जो ऑडिट फर्म, जैसे कि आई डिस्कस्ड इन माय ओपनिंग प्रेजेंटेशन, कि जो ट्रेडिशन हुआ है ऑडिट प्रोफेशन का इन द लास्ट 20 इयर्स, with the introduction of the computer based audit tools and computer based audit strategies. So this is you cannot skip these types of techniques. Otherwise it's baseless to use these techniques, क्योंकि ये सारे जो चैट बॉक्स हैं और इस तरह की जितनी चीजें ये हैं, they supplement the audit process and your audit tool. उसके बगैर ये चीज हो नहीं सकती। तो एंड इसमें अपना पर्सनल मैं आपको देता हूँ कि एक एग्जांपल की, ये आपका जो आपकी एफिशिएंसी है, इजीली 30-40% आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल नॉलेज यू कैन शेयर। तो उससे आप जो, और इस पे एक चीज ये है कि हमारा प्रोफेशन जो है इस वक्त जितनी आई थिंक टारगेटेड उस वक्त है, इसमें जो बायनोकुलर से हमारे प्रोफेशन को देख रहे हैं, तो वो उसके लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट, इसके लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वो बहुत जरूरी है। तो दिस इज, आई वुड से कि दिस इज अ नेसेसिटी नाउ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आप दोनों में से जो आंसर करना चाहे। रेगुलेटरी बॉडीज में हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्योंकि समटाइम वास्ता पड़ता है एफबीआर से या एससीसीपी से, तो आप क्या समझते हैं जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो किस हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, या हम उनके साथ इंटरेक्शन के अंदर हमारी क्या हर्डल्स हैं जो स्टिल हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, if we compare our relation to like if we go back 10 years, उसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत। और उसकी वजह, एक सबसे बेस्ट वजह ये है कि ये जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वहाँ जितना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हुआ है in the last 5-6 years, and they have hired professional qualified people, उससे तो बहुत चेंज आया है। ये तो एक कंपनी, लेकिन is it enough? I think no, because still we need to have more positive environment between the firms and the regulatory body. And here I would say institute can come, and institute can give its input that how this relationship, again, definitely, as I just said, as compared to last 10 years, we are moving on in the right direction. अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को कह रही हूँ जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे लाइव मौजूद हैं और जो जूम पे इस वक्त मौजूद हैं, अगर वो अपने कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो वो इस वक्त चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इस वक्त डिस्कशन में, हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट इज गोइंग टू एंड, लेकिन जो अगर आप लोग अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे उसको। जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को? हैदर? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर विच टूल्स एंड स्किल सेट वुड यू रेकमेंड फॉर द डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ये जूम पे हमारे साथ स्टूडेंट है, उन्होंने सवाल पूछा है, मिस्टर फहीम। अब पावर बीआई, टैबलू, ये सारे डेटा एनालिटिक्स के विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं।
आप इनमें से कोई भी स्किल सीखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है फ़हीम, आई थिंक आपको दाऊद साहब ने रिप्लाई कर दिया इसका। और अगर किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो पूछना चाहें। जो ऑडियंस मौजूद है, इफ यू कैन रेज हैंड तो वी कैन अनम्यूट योर माइक्स। शो बाय शो ऑफ हैंड्स या मैसेज से हमें बताइए, सो वी कैन अनम्यूट यू if there is any question from the audience right now on Zoom. जो फेसबुक पे भी ऑडियंस हैं वो भी हमें कोई अगर पूछना चाहते हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी नौशीन रेगुलेटर पे, तो खुरम साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि रेगुलेटर ने काफ़ी कुछ काम किया है, बट मेरा ये व्यू है कि ज़्यादातर जो काम हुआ है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या अभी हमने फाटे पे भी देखा, तो ज़्यादातर हमने कॉस्मेटिक्स की हैं, और मेरे ख्याल से अभी भी बहुत ह्यूज गैप्स हैं बिटवीन द रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लैकिंग नज़र आती है टू कम्युनिकेट विद रेगुलेटर, वो जनरली स्पीकिंग, मैं किसी एक रेगुलेटर या एक किसी टीम को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, तो मेनली दे लैक इन द बिजनेस नॉलेज। तो अगर वो इंस्पेक्शन पे भी आते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, SCCP हो, दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। सेम इज विद FBR भी ऐसे नोटिस भेजता है, वो समझे बगैर उन्होंने नोटिस या ऑर्डर्स लिखे होते हैं, और फिर वो लंबे अरसे तक वो डिस्प्यूट में जाते हैं। तो दिस इज माय व्यू ऑन द रेगुलेटर साइड। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि समटाइम ऐसा होता है कि जो हमें रेगुलेटरी बॉडीज़ की तरफ से जो नोटिस आ रहे होते हैं वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। इवन मैं यहाँ हम करिकुलर से रिलेटेड भी बात करें कि कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे कोर्स या सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे रिलेटेड हमें डिस्कशन के लिए मतलब कई ऐसी वीकनेसेस भी नज़र आती हैं उन एक्सपर्ट्स की। तो स्पेशली और जहाँ तक यहाँ एकेडमिया की बात करें, हमें बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल, जहाँ स्पेशली हम फाइनेंस या अकाउंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो मैं समझती हूँ कि टू बी वेरी फ्रैंक बहुत सारी चीज़ों की वीकनेसेस हैं करिकुलम में जो कि ऐड होनी चाहिए। जो हम लोग जी, जी। चीज़ें पढ़ाते हैं वो, और प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट्स को स्पेशली जो मतलब मिलनी चाहिए Fahim, वो there is some बहुत Fahim ज़रूरी होती who है। wants to ask a question live. यस सर। अस्सलाम वालेकुम, जी, थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एक मेरी क्वेरी तो क्लियर हो गई कि डेटा एनालिसिस के लिए पावर BI एक अच्छा टूल है, इंशाल्लाह इसको मैं करूँगा। सर सब में ऑटोमेशन के लिए ना, सब में जो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है वो होता है डेटा इनपुट करना, ठीक है। और ये सब में ज्यादा जो ना प्रॉब्लम है कि डेटा गैदर करना, फिर से इनपुट करना, प्रॉपरली इनपुट हो, फिर उसके बाद में डेटा मैनुअली हमें एनालाइज करना होता है। उसके बाद हम जो भी हमने ऑटोमेट किया हुआ है उसके बाद हम उसका रिजल्ट अच्छा ले सकते हैं। तो सर क्या कोई ऐसा टूल का या ऐसा आपकी सजेशन है कि हम डेटा इनपुट में हम कोई बेहतरी ला सकें? फहीम, विदाउट गोइंग इनटू आपके इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि DHL, TCS ये सारा डेटा इनपुट करते हैं, बार कोड स्कैन करते हैं। हम इम्तियाज पे जाते हैं, वो बार कोड स्कैन हो रहे होते हैं। तो दुनिया भर में जो स्कैनिंग टूल्स हैं वो डायरेक्ट ऑटोमेटेड डेटा एंट्री है। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल है, यू हैव टू एनालाइज कि आप उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। हम सबको अपने अपने बिजनेस के लिहाज से बैठ के सोचना पड़ेगा। पहली चीज है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, एंड देन फिर टूल्स अवेलेबल की अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑटोमेट ना हो सकती हो। हाँ, उसकी एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होगा, उसकी एक कॉस्ट होगी। IT की दुनिया में जब भी हम IT वालों से बात कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। आप उसकी कॉस्ट देने के लिए तैयार हो, उस पर आप टाइम लगाने के लिए तैयार। सर थैंक यू। एक्चुअली मैं हूँ एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके साथ क्रेडिट ब्यूरो हैं, और आपको पता है 60% तो हमारा रेवेन्यू सर्विस प्रोवाइडर से ही जनरेट हो रहा होता है। तो सिंपल जो बैंक पेमेंट वाउचर्स, इनवॉइसेस, बैंक रिसीट्स, कैश पेमेंट्स की मंथली एंट्रीज, ये एक बिल्कुल कॉमन डेटा होता है जो कि अक्सर फर्म्स के अंदर ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको अब कैसे वाउचर्स वगैरह कैसे हम कर सकते हैं कि इसमें बेहतरी ला सकें? देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ। आपने शायद एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। इसमें ये जितने भी आपके मैनुअली की इन होती है डेटा वगैरह, वो बड़े आराम से वो ऑटोमेट हो जाती है। जैसे शहजाद ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा अपना प्रोसेस समझना पड़ेगा। आप जब RPA
आरपीए के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, कस्टमाइज टूल्स भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड टूल्स भी अवेलेबल है। आप उनमें से कोई भी टूल ले और अपना डेटा उसके अंदर ऑटोमेट करना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है कि मैं जो प्रोसेस ऑटोमेट करने जा रहा हूँ उसके बाद वो प्रोसेस। जी 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 दाऊद, कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था कि एक ब्रॉडर टर्म जैसे आरपीए एआई के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और अब बहुत यूज भी हो रहा है। और ये खासकर वो सारे प्रोसेस जिसमें मैनुअल इनपुट बहुत है, रिपीटिशन बहुत है, जैसे इन्होंने भी एक कुछ एग्जांपल भी दिया ना कि इनवॉइस और ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसको तो बहुत आराम से इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंडस्ट्री आपकी बस बिजनेस एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। टूल्स आर अवेलेबल, बहुत सारे टूल्स हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एआई की सबसे अच्छी बात ये कि टूल्स अपने लिए या कोई भी एप्लीकेशन अपने लिए बनाना बहुत आसान है, आप उसको बहुत आराम से बना सकते हो। बहुत सारे एआई की टूल्स खासकर फाइनेंस के अंदर वो पाइथन के अंदर बन रहे हैं। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो इतना कोई आसान है कि आप जो भी चाहें आप उसको आराम से कर सकते हैं, जो भी चाहे। मैं मतलब कुछ भी, मैं एग्जांपल तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो यू कैन इजीली डू दैट। टूल्स आर अवेलेबल। और ये जो कैश की वो सारी बात कर रहे थे, आई थिंक बैंक पेमेंट्स जो है वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इवन सारे हमारे कैश जैसे टैक्सी के क्लेम्स, मील्स के क्लेम में आप सिंपली अपने ऐप से उसका फोटोग्राफ खींचे और उसको आप अपलोड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो देखिए, एचआर के आप सिस्टम एक में चीज जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो मैं जाते हैं। सो देयर जो जिसने भी सो मेनी टूल्स अवेलेबल। कैश टू ऑर्डर, पे टू प्रोक्योर, इस टाइप के प्रोसेस, ये तो मतलब आने वाले 2-3 सालों में वैसे भी सारे ऑटोमेट होने वाले हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जितनी भी एआई की, खासकर अभी आपने जिक्र किया ना, तस्वीर लेके ये डाल देना, फेशियल रिकग्निशन, स्पीच की जो टेक्नोलॉजी एआई में, ये वैसे ही बहुत कुछ आसान करने वाली है। एक छोटी सी एग्जांपल, अभी पासवर्ड शायद आगे जाके बैंक पासवर्ड भी खत्म कर दे, जो हम अभी डालते हैं ना पासवर्ड वगैरह, ये सारे वो स्पीच वीच और फेशियल रिकग्निशन पे चले जाएंगे। ट्रू। जी नौशीन, और सवाल हैं? नहीं सर, फिलहाल जो थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। बाकी जो, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने जो ऐसे एरिया था वो माशाल्लाह कवर ऑलरेडी हो चुका था, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रीफली एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। तो जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे वो उसमें उसका आंसर हो चुका हुआ। अच्छा, दो क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट के नजर आ रहे हैं, मैं क्विकली पढ़ लेता हूँ। एक तो एक किसी का क्वेश्चन है, डज अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल फील फियर इन नियर फ्यूचर रिगार्डिंग देयर जॉब्स ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? तो क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो क्या बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं उनको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? क्विक कमेंट पूनम साहब। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इससे डरना चाहिए, क्योंकि ये तो इससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। व्हाट आई फील एंड आई थिंक कि अब बहुत लिमिटेड लोग तो कह सकते हैं आप, जो कि अगर अंडर परफॉर्मर या अंडर अचीवर्स हैं उनके लिए तो हो सकता है, लेकिन व्हाट आई फील कि इससे जो है, आप ग्लोबली देख लें ना, ग्लोबली तो उन्होंने ये बहुत पहले ये चीजें अडॉप्ट कर ली है, लेकिन वहां अगर फाइनेंस का फंक्शन और अकाउंटिंग का फंक्शन देखें तो दैट इज बूमिंग। अभी आप जैसे यूके में सिर्फ देखें, यूके इज हायरिंग लाइक पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स लाइक एनीथिंग। तो और वहां तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी हैं। तो इसमें तो आई थिंक वी शुड नॉट बी नेगेटिव इन आवर फीलिंग्स। चैलेंज डेफिनेटली होगा, चैलेंज होगा इसके अंदर कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो उसमें आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी डेफिनेटली आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ऐसा आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएं और बिल्कुल जॉब मार्केट खत्म हो जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है दाऊद साहब, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू यंग एंड अपकमिंग प्रोफेशनल्स? तो आई अंडरस्टैंड क्या वो ये देख रहे हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में या डिजिटल इकोनॉमी में हम जा रहे हैं तो वहां पे यंग और नए प्रोफेशनल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी? दाऊद साहब। देखिए इस वक्त मैं अगर एग्जांपल दूं फिनटेक की, ठीक है, फिनटेक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इंतहा की बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अभी बहुत कम काम हो रहा है। खुरम भी इसी फील्ड से हैं, यूनोस के अभी कितने गिनती के हम शायद अपने फिंगर पे गिन लेके कि पाकिस्तान में इतनी जो क्वालिटी के फिनटेक से अवेलेबल। अब फिनटेक में करियर बनाना इज वेरी इजी। आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड तो है ही, फाइनेंस का बैकग्राउंड तो है ही, वो नॉलेज तो है ही आपके पास, जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल एंड बनाना है। और मैंने जैसे कुछ चीज़ों की एग्जांपल दी कि वहाँ अपनी स्किल डेवलप करें, आप फिनटेक में बहुत काम कर सकते हैं। अदर देन दैट, जस्ट फिनटेक नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। मतलब एआई के जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जिसमें फाइनेंस का बंदा नहीं होगा। अगर वो स्टार्टअप बगैर फाइनेंस के बंदे के काम करे, इसको मतलब इन द लॉन्ग रन वैसे ही सक्सेसफुल नहीं हो सकती है।
तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। इंडस्ट्री एक नॉर्मल, अभी जो आपने पहला भी सवाल था ना उसमें जो फेयर और वो चीज़ थी, पहली बात मैं एक चीज़ कहूँ, आप ट्रेडिशनल फाइनेंस से जब अकाउंटिंग और फाइनेंस होती है उससे एक फैंसी फाइनेंस में बैठे होंगे, जहाँ टूल्स होंगे, जहाँ डेटा एनालिसिस होगी, जहाँ प्यारी प्यारी बातें होंगी, तो वो बुक कीपिंग और डेबिट और क्रेडिट और उस काम से वैसे भी आपने बाहर ही आना है। तो ना फेयर करें, और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है। हमें जस्ट सिट विद टेक्नोलॉजी का किसी के साथ दोस्ती करे, जो बैचलर्स कर रहे हो IT शाइटी में, उसको बोले कि यार आए फिनटेक में काम करते हैं, यू कैन ऑलवेज क्रिएट एप्लीकेशन, इतने एप्लीकेशन आप बना सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक यू कांट इवन काउंट इट। जी, एनी क्वेश्चन जो अभी जूम पे अटेंडेंस हैं, कुछ नाम मैं पढ़ लेता हूँ जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मोहम्मद उजैर, आमिर जान, आमिर वहीद साहब, फराज सैयद, फेसबुक पे कुछ दो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, वो मैं रीड कर देती हूँ। ये मिस सबा ने पूछा है कि हाउ कैन द फाइनेंस टीम फोस्टर बेटर कोलैबोरेशन विद द प्रोक्योरमेंट, और सेकंड क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज आल्सो शेयर सम की कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक की कंपोनेंट फोरम से पूछ लेते हैं। और पहला सवाल क्या था? हाउ प्रोक्योरमेंट कैन का द फाइनेंस रिलेशनशिप टीम कैसे होगा? फोस्टर बेटर कोलैबोरेशन विद द प्रोक्योरमेंट। जी, कोलैबोरेशन विद प्रोक्योरमेंट। देखिए, हम शुरू से जो खुरम ने जो प्रेजेंटेशन शेयर की, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हम एक बात मुसलसल कह रहे हैं कि जो कल का फाइनेंस है वो बिजनेस के लिए कौन सी वैल्यू ड्राइव करेगा। अब जब बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप विद इन फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, आप जो बाकी फंक्शन है उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो आपका जो डेटा आज आप जो डेटा बनाएंगे उसका यूजर तो आपका बाकी डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट तो बहुत डेटा आप पे यूज करेगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप तो आगे जाके इनहेंस ही होनी है, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है नौशीन? सर हमारे पास अराउंड 7 to 8 मिनट्स और है। मैंने अपने 2 क्वेश्चन बचा के रखे थे, तो पहला सवाल मेरा आप दोनों से है। आप जी प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा। मुझे ये बताइए, हमने बहुत सारी बात की कि रेगुलेटर, इंडस्ट्री, एकेडमिया सेम पेज पे नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक चीज़ है माइंडसेट अभी भी हमें बहुत सारी जगहों पे मिसिंग लग रहा है। करिकुलम में जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए हमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वी आर मेनली ऑन द के दुनिया ने कर दिया, उसके बाद हम फॉलोअर की जगह पे जाते हैं, लीड नहीं करते। अब मुझे ये बताइए कि बीइंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स, आप लोग भी और मैं भी, एंड देयर सम ऑफ द नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल CFO क्लब है, या अभी हम कैस्पिट की टीम के साथ बैठे हैं, कैस्पिट यूनिवर्सिटी है। व्हाट आर योर सजेशंस कि हम एज अ सोसाइटी या एज नेटवर्क ऑफ पीपल, एज प्लेटफॉर्म, हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारा फोकस होना चाहिए? जी, वन बाय वन, स्टार्ट विद दाऊद। देखिए, अब एक चीज़ तो हमारे अब सभी एग्री कर रहे हैं, जितने हमारे रेगुलेटर से थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, उसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी पीछे रह जाती हैं। लेकिन जिस तरह के आपके नेटवर्क्स हैं, इस तरह और भी बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, वो कोलैबोरेटर का रोल प्ले कर सकते हैं। आपने जो एक MOU साइन किया कैशबिट के साथ, मेरे हिसाब से उसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ पर एरियाज आइडेंटिफाई करें। मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में, वो इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। आप जैसे डिजिटलाइजेशन अभी पाकिस्तान में आई ही नहीं है, ठीक है। आप भले ये टर्म यूज़ करते रहिए, क्वाइन हो रहे हैं, क्या अभी पीछे इस PTI की गवर्नमेंट ने वो भी बनाए थे, कोई बॉडी भी बनाई थी, स्टिल वो भी बस बनी और फिर शायद वो इतना फंक्शन नहीं कर रही। तो डिजिटलाइजेशन में तो हमारे पास करने को बहुत कुछ है। व्हाई वेट फॉर रेगुलेटर? देखिए, दुनिया में ऑब्वियसली रेगुलेटर के थ्रू भी चीज़ें हो रही होती हैं, हम अदर वे राउंड कर सकते हैं। ये जितनी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इस तरह के लोग अवेलेबल जिनकी सोच अच्छी है, ठीक है, हम उस सोच को लेकर एज ए कोलैबोरेटर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जितने भी मेरा एक अपना व्यू है कि हमने ये इंक्यूबेशन सेंटर्स तो बड़े बना लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ बच्चों के करियर भी बड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, 3-3, 4-4 साल लगे रहते, कुछ होते नहीं। वी रियली नीड टू जस्ट वर्क ऑन दोज इंक्यूबेटर्स, वहाँ ज़रा क्वालिटी लेके आ जाए, वहाँ एक सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी, वहाँ हर स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट बाद में आना है वो भी बैठे, जिसका इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाए वो भी बैठे, और इवन रेगुलेटर्स आए वो इंक्यूबेशन सेंटर को अडॉप्ट करें, ठीक है। जस्ट फंडिंग से नहीं होगा, ठीक है, आप डायरेक्शन भी तो देना। आपको
हम यहाँ बैठे हुए, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हमारी, आए बैठे एसएमई सेक्टर में किस तरह हम इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आप कब तक टैक्स पे रिलाई करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे? एफबीआर को भी सोचना चाहिए ना। एफबीआर आए, देखे कौन से स्टार्टअप से जो इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आई नो स्टार्टअप जो कि एसएमई की डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहा था। अब वो अपनी एफर्ट कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी एफर्ट में उसको बहुत टाइम लगेगा, उसके पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, जब तक रेगुलेटर एक स्टेप आगे लेके नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे सीएफओ क्लब और बाकी भी बहुत सारे होंगे बॉडीज, वो एक कोलैबोरेटर का रोल प्ले करें इस तरह के स्टार्टअप्स को, और इनको तो वो जो गैप है उसको पैच करें। तो काम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी खुर्रम साहब, what would you advise? I think आपने ना you already answered this question when you were taking the key takeouts from this profession, from this discussion. आपने कहा था innovative thinking. So I think innovative thinking will supersede every transition in every department. अगर finance है, कुछ भी है, आप सिर्फ इसका एक एग्जांपल लें। आपने आई थिंक आपने ही एग्जांपल दी थी, ये जो उबर और ये करीम थी, लास्ट 10 years में अगर आप देखें कि ये है क्या, जस्ट एन इनोवेटिव थिंकिंग। नाउ प्रॉब्ली आज भी शायद यही है। इनका एक लोगो तो था कि दिस इज द बिगेस्ट ट्रेवलिंग और कम्यूटिंग कंपनी विदाउट ओनिंग अ सिंगल कार। ये इसके अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, इसके अंदर ना कोई डिजिटल कंप्यूटराइजेशन रिक्वायर्ड थी, ये एक सिर्फ इनोवेटिव थिंकिंग थी। अब we need these type of concepts. Otherwise हम जैसे we have discussed in the last 90 minutes or so कि definitely ये बहुत सारी चीजें हैं, वो फिर वो बुकिश रह जाएंगी। If we are willing to change first, if we are willing to change, then innovative thinking should come first, और उसके बाद फिर आपके पास सारी चीजें आएंगी। So otherwise, without this innovative change or a mindset change, this whole philosophy of transformation in finance probably is not going to work. थैंक यू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है, बहुत ही क्विक कमेंट चाहिए। से आप दोनों जो हैं किसी प्रोफेशनल बॉडी को ज्वाइन करते हैं, से आईकेप में आते हैं, एंड आईकेप में जब आप आते हैं इन लीडिंग पोजीशन या कोई किसी भी ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आप कुछ चेंज ला सकते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज क्लोज टू योर हार्ट, जिस पे आप फोकस करेंगे, जिस पे आप काम करना चाहेंगे? खुर्रम साहब। जी यार, देखिए मेरा अगर वन पॉइंट एजेंडा हो ना किसी का, मैं तो ये कहूंगा कि वी शुड बी वर्किंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी इंडिपेंडेंट सीईओ फॉर आईकेप। council should be just like if you see the corporate world, एक entity, एक जो आपकी एक कंपनी है, corporate entity, board of directors आपको एक गाइडेंस वो देते हैं, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, and CEO is responsible for that the implementation of that plan. देखिए council will come, इसमें जैसे भी कोई भी regulatory body आती है वो आएगी for 5 years, 4 years, 8 years, but CEO will be there, institute will be there. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि what should be the single point agenda, तो I would focus on the strong and independent chief executive or a managing director for the institute. So I would summarize this कि you would focus on the leadership area. Leadership. जी दाऊद साहब। मैं वन पॉइंट एजेंडा तो मुश्किल हो गया इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को चलाने के लिए, बट आई थिंक गवर्नेंस, मुझे लगता है गवर्नेंस हमारा पाकिस्तान का इशू है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर चले। एंड जैसे खुर्रम ने सजेस्ट किया कि सीईओ, ऑब्वियसली जब एक इंडिपेंडेंट सीईओ आके उस फंक्शन को लीड करेगा तो गवर्नेंस का मॉडल आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो यस, सीईओ तो हमें बिल्कुल चाहिए, क्योंकि काउंसिल वगैरह तो आके पॉलिसी मेकिंग करेंगे, 3-4 साल रह के वो चले जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन तो आपको नीचे किसी बंदे से ही करा देंगे। तो आपको गवर्नेंस का मॉडल स्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसमें सीईओज का आना, फंक्शंस का सेक्रेटरीट में चला जाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। So both of you are transformative. ठीक है, आप टेक्नोलॉजी साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, but you're talking about transformation in the sense of leadership and governance. Thank you. This is your moderator Shahzad Dedi. Over to you, Nosheen. Thank you so much on behalf of the CASPED, and I personally thankful to Sir Dawood and Sir Khurram, and especially special thanks for Shahzad Dedi साहब, जिनकी collaboration से
एक वंडरफुल वेबिनार जो है हमने अरेंज किया। आई होप कि जो हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह ज़ाहिर है ये एक ऐसा इतना बड़ा टॉपिक है कि हम उसको एक लिमिटेड 90 मिनट्स के अंदर कवर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम मज़ीद सर को ज़हमत देंगे दोबारा इनवाइट करने की। और थैंक यू वंस अगेन for giving your precious time. Thank you so much, Khurram Saab. Thank you so much, Daud Saab and Shahzad Saab. Thank you for having us. Obviously, it's a बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं या खुरम मुसलसल कोशिश करके भी शायद इसको कवर नहीं कर पा रहे होंगे, बट ऑब्वियसली वी आर अवेलेबल। जब भी कभी आपको लगा तो आई एम श्योर मैं खुरम के बिहाफ भी कह सकता हूँ, ही इज आल्सो अवेलेबल, because we are the same profession, तो हम इस काम में अवेलेबल होते हैं। Thank you very much, Nausheen, and special thanks to Shahzad. It was a wonderful event, and my best wishes for the students who are looking forward for this profession. And I think we definitely need strong professionals like you in our profession. Thank you so much, sir. Once again, good luck. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.